बेटा, कैन यू टेल मी? सबसे पहले पूरिया बेटा, आप बताओ। पहले मैं आपका डील कर लूँ शू। जी सर, मैंने आपको बताया था वेबसाइट ऑथरिंग का पेपर 2020 मई जून 31 वेरिएंट। ठीक हो गया, मैं करता हूँ। So, but all of you listen. Obviously, when there's a query, it will help you guys as well. Okay, so are you referring to this one, right? यस सर, इसका स्टाइल शीट का पार्ट मैं तंग कर कर दूँ। रहा था। मैं डायरेक्टली उधर चला जाऊँ। ठीक हो गया. So we'll do this. So I'm recording this. Yes, yes, I am. Open the style sheet this in a suitable software package. Edit the style sheet to meet the following requirements. So if you actually look at the files, 3.1. So always remember to extract your files. इसमें they are referring to this file. So I'll obviously open up Dreamweaver and I'll make sure I open up this file in my Dreamweaver software. ठीक है ना? So here we go. Let me just close extra files. Uh, जरूरत नहीं है. Okay. जी. So what we're saying is I will have to open this file. मैं इसको directly open कर लेता हूँ. I can drag it here. This is what they have. There's nothing much here. ठीक है? So the question is, let me zoom in more. Okay. Edit the style sheet to meet the following specification. सबसे पहले saying is that all the table borders have a width of 0 and green lines are separated. So सबसे पहले हमने क्या करना है, we have to make a table tag. ठीक हो गया. So well so should have we can actually basically edit this file to meet the following specification. All table tag with the width 0. So हम इसी table tag को edit कर सकते हैं. ठीक है. इसमें आके what I can do is कि मगर requirements should be according to that. So you simply come here, CSS designer. ठीक है. You see the table tag. ये आपके आ गए properties की. What property do we need? We want a borders to have width 0. So कोई मसला नहीं. इधर आओ. You are here. You have is your border. So border width has to be in pixels and 0. Define that as you can see. ठीक हो गया. Next. So grid lines. So 0 we have done. Grid lines are separated. Let's do this. So in order to make it separated, आप यहाँ देखोगे कि रख दूँ. You will see over here is we have two options available. मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊँ. Border collapse. Okay. We have over here separate and collapse. So you can see this. If I do this, it's collapse. If I do this, separate. So border, separate. That's what they're referring to. मैंने कहा था एक बार go through all these. It's not a big deal. अब इन options को एक बार सारा explore कर लो. All cell spacing within the table is set to 20 pixels. 20 pixels, what? We're talking about cell spacing. So come here. You will see over here is, let me just somehow bring it here. और मैं इसको थोड़ा सा और expand कर देता हूँ. इतना expand कर देता हूँ. You can see over here is, I have border radius. ठीक है. और साथ ही आपके पास आ जाएगा आपके ये. So padding आ गई, position आ गई. So we are talking about ये आपकी एक्चुअली margins. Margins are your spacing. ठीक है. क्या करनी है हमने? 20 pixels. So we will set this as आपके spacing क्या padding क्या मैं दोबारा पढ़ लूँ. Spacing की बात. ठीक है. So here we go. So we will set this 20 and वैसे तो इसमें ऑप्शन होती है टू सेट ऑल 20. चलो मैं यूँ कर लेता हूँ मैनुअली. ठीक है. राइट. फिर वो क्या कह रहे हैं कि the background color of the table is black. So make sure you again come over here and background color of this will obviously black 0000.
ब्लैक हो गया. Then they're saying is all tables are center lined, which the coding is already there. Okay, right? सर मेरा एक सवाल है. जी. सर ये जो सेल स्पेसिंग वाला पॉइंट था, इसमें हमने मार्जिन को करना था, बॉर्डर स्पेसिंग को नहीं करना था. कौन से? ये जो सेल स्पेसिंग 20 पिक्सल्स वाला है, हम्म. इसमें मार्जिन्स को करना था, बॉर्डर स्पेसिंग को तो नहीं करना था. आपने all spacing within the table is 20 pixels. The background color is this. All make there is no cells padding. Padding नहीं होनी चाहिए. Spacing ठहरो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. We have to have over here is margins हो गई. पैडिंग करनी नहीं है, पोजीशन तो नहीं करनी है हमने. एंड देन वी आर रिफरिंग टू बॉर्डर रेडियस कोलैप्स. जी हमने इसको करना, मार्जिन को करना है बेटा. सिर्फ बॉर्डर कोलैप्स के नीचे बॉर्डर स्पेसिंग है, अगर आप एक दफा देख लें इसको कंफर्म. बॉर्डर. बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर कोलैप्स के नीचे. लेट मी कंफर्म दिस. अच्छा, टेक्निकली अगर आप ये करो या वो करो, आउटपुट आपका वही आएगा, क्योंकि मार्जिन एक्चुअली मीन्स द सेम थिंग. हाँ, इसका फायदा ये है, आई एग्री विद यू. इसका फायदा ये है कि शॉर्टर है. दिस विल ऑब्वियसली हैव मोर कोड. मगर मार्जिन एक्चुअली मीन्स योर बॉर्डर. हर बॉर्डर के दरमियान भी कितनी स्पेस हो. तो अगर मार्जिन जब 20 रखते हो या आप स्पेस रखते हो, बात तो वही है. मगर ये दोनों नहीं रखने. या तो आप ये रखो या तो आप ये रखो. ठीक है. सो इन दिस केस आई कैन डिलीट दिस या आई कैन डिलीट दिस. सो कि ऑब्वियसली दोनों केस में वो फिर 40 हो जाएगा. ठीक है. यस. ठीक है. तो मैंने बॉर्डर स्पेसिंग ये रखा है. ओके फाइन. सर. उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने इसको नो पैडिंग, पैडिंग हमने की नहीं है. सेंटर लाइन हमने कर दिया है. ओके. सो अच्छा नहीं, सेंटर लाइन अभी हमने नहीं किया. हाउ डू वी मेक सेंटर लाइन? डू यू नो दैट? सेंटर लाइन के लिए हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली कम हियर टेबल में, और इसमें आएगी उसकी, डिड यू सी द पोजीशन? सो मार्जिन आ गए, आपकी पोजीशन. सो व्हाट वील डू इज वी विल मेक दिस ऑटो. ठीक है. एंड वी विल मेक दिस ऑटो. when you do both auto left and right, it has actually aligned the center. Get the point? That's why center align the table. ये जो existing text है ना, ये text alignment है. The text alignment in the table should be centered. ये vertical alignment है middle. So table center में नहीं था. Table center होगा यूं. Right and left should be auto. Get the point? Okay. यस सर. ठीक हो गया. फिर वो कहते हैं the background image of this. Now where would you place the background image? Anyone? कौन सा टैग लगाएंगे हम? In order to specify the background, we use which tag? We use is the body. So we have to do is, मैं use करूंगा आपका body tag. So background always appears in the body tag. Remember that. ठीक है. आपका खैर लिखा नहीं गया. Body why? So body tag में we simply have to have is the image, and the image basically is 2031. So आप directly इधर आओ. Okay. You will see over here is a background image. Specify the folder, and note that this was not the folder, because it's supposed to be this folder. Let's copy the path. Somehow it's supposed to be this folder that we're referring to, and they're saying is 2031. Is this the one? No, it's BG. This one, 2031 BG, right? ये आपकी आ गए. As a background is set to repeat to fill the browser window. So आपको पता है when you insert a background, you have over here options which says is no repeat, repeat x-axis, repeat y-axis, and if you want it no repeat. So we want it to repeat as उन्होंने किया. So background should be repeated like they've specified. Set to repeat, right? सर अगर क्वेश्चन के Right. अंदर नहीं लिखा हुआ कि तो रिपीट नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फिर क्या करेंगे? अब फिर आप इसको नो रिपीट करोगे. गुड क्वेश्चन. बिल्कुल सही. ठीक है सर. ठीक है.
अच्छा, टिल नाउ एनी प्रॉब्लम? कौन कौन साद है? तो सर जी साद, ठीक है। Any problem? Next, styles H1, H2 and H3 are set to green with no red or blue component and have this. अच्छा, इसके लिए what we have to do is we'll simply type over here H1, comma H2, comma H3. ठीक है, और this is the code block of these three. अब whenever you have to set multiple properties, you always use H1, comma H2. मतलब इन तीनों की properties के अंदर ये आएगा। क्या आएगा? पहली property क्या है कि with no green and red component। अच्छा, मैंने आपसे डिस्कशन प्रॉब्ली क्लास में की थी, दोबारा सुन लो। हेक्साडेसिमल क्या होता है? देखो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। डबल डिस्कशन हो जाएगी, कुछ नहीं होता, बहुत में आ गए हम। अगर हम बात करते हैं इसकी, you do know that when we type 000000, this actually means it's black, ठीक है, right? So when we write is ff, sorry, ff0000, this actually means it's your red. Why? Because we have red, green, blue. Okay, this all is represented in the form of RGB, red, green, blue. So if you want is green, you'll have 00, ff 00. This would be pure green. And if you want 0000 ff, this would actually be pure blue. ठीक हो गया? And if you want white, white का pure color क्या होता है? आपका ff, ff, ff. Yes. So you should know this. Yes or no? Is this clear? This can come in even in theory. ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके सर। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? We want is with no red or blue component. Okay, we want are green. So we want is this. Is that clear? Everyone clear with this point or not? यस सर। Yes. यस सर। यस अच्छा, सर। इसमें अभी इस दफा तो क्वेश्चन नहीं आया, बट लेट मी टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मैं सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करना चाह रहा, लेट मी डिस्कस मोर। अगर वो कहता है कि ग्रीन शुड बी 50% ऑन, फिर इसका कोड क्या होगा? देखो बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि आपका एक्चुअली होता है 0 to 255, सो मैक्सिमम कम्बिनेशन 255। सो आपने निकालना है 255 का 50%। सो इफ आई यूज माई कैलकुलेटर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी एक्चुअली वांट इज व्हाट, ओह नॉट दिस वन, आई एम सेइंग इज कि अगर हम यूज करते हैं 255 का 50% मतलब डिवाइड बाई 2, simple, 127. So what will we write? 127? No, it will actually we round up, it's 128. तो अब आप कहोगे क्या सर 128 क्या मतलब है? मतलब if they say 10%, so 10% of 255, which is 25.5, मतलब 26, round up. If they say 12% of 12% red, ये 10 blue, तो हम निकालेंगे 12% 255, जो भी। सर हम सो ये स्टाइल मैं शीट में दोबारा आगे रिपीट नहीं कर कर रहा हूँ सकते 15% या 30%? बेटा, जैसे कलर सेलेक्ट कोई करके भी हो, वहां से कर लें। नहीं नहीं, वहां से किस तरह करोगे आप? आपने हेक्साडेसिमल तो वैल्यू निकालनी है ना। देखो, मैंने आपको बता दिया 00 होता है ब्लैक के लिए, एफ होता है जी। आपके व्हाइट के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें प्योर ग्रीन ही चाहिए। देखो, जो ग्रीन का होता है हम्म। ना, ग्रीन बेसिकली हैज 0 से लेके 255 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन, जिसमें लाइट ग्रीन से लेके डार्क ग्रीन तक डिफरेंट कलर्स आते हैं। हम्म। वो कह रहा है कि आप ग्रीन का मुझे वो शेड बताओ जो 50% ग्रीन हो। तो अच्छा। मुझे क्या पता उसका उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी? उसका तरीका ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने करना है कि 50% कहेंगे ना, तो 50% ऑफ 255 निकालोगे, मतलब 255 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया? 127.5। इसको हमेशा आपने करना है हम्म। राउंड अप करके यू गेट इज 128। एग्री विद मी? जी सर। अच्छा, ठीक हो गया। जब आपके पास ये आ जाएगा, तो आपने क्या करना है? अच्छा, ये क्वेश्चन की चांस बहुत रेयर है, मगर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आ जाए तो किस तरह हाउ टू डील विद इट। आई होप आई हैव फोटोशॉप हियर। यस आई हैव। वैसे तो ये, एक सेकंड, ये ड्रीम व्यूअर में भी इसका ऑप्शन होना चाहिए। एक सेकंड दो मुझे। अगर मैं ओपन करता हूँ न्यू, पुराने वर्जन में तो था। आई जस्ट वांट टू चेक हियर, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। तब तक फोटोशॉप ओपन हो रहा है। सो आई ओपन अप द
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम में लाइव में डिजाइन में विंडोज। सो इधर आके लेट्स से इफ आई सेलेक्ट CSS color and if I type over here यहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रही जो आनी चाहिए, दैट्स द इशू। ठीक है, इसलिए फोटोशॉप में यूज ग्राफिक सॉफ्टवेयर करना सर पड़ता एक और चीज पूछनी थी मैंने, ये प्रॉपर्टीज के अंदर ना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे HTML में? है। ऑल्ट का मतलब होता है कि अगर इमेज है, हम्म। if the image is not appearing you can type in the alternate to the image text, the text that would अच्छा represent the ठीक है। image। ठीक है। अच्छा ये ठीक देखो, है सर। आपने ये करना है, फॉर एग्जांपल मैं, एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जांपल आपने ये, मैं ओपन करूंगा इसका पेंट, डबल क्लिक करो इस पे, ये ओपन हो जाएगा। इसमें देख रहे हो आप RGB आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, ये जी यूज सर। करना है। तो ग्रीन में मैं टाइप कर दूंगा 128। देखो मैंने 120 टाइप किया है, तो 80 आ गया है। ग्रीन देख रहे हो, 80। जी आर सर। जी बी ऑल ऑफ यू विद मी। अगर आप बुक को पढ़ोगे ना, बुक में के वेब ऑथरिंग के चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 25% का कोड होता है 40, 50% का होता है 80। तो ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि 50% का ही होता है। ठीक है। सो दिस इज हम्म। व्हाट यू हैव। सो आपने 80 लिखना है। सो लेट्स से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 12%, और 12% का आता है लेट्स से 41, तो आपने 41 लिखना है। तो 41 का लिख जाएगा 29। तो 29 इज द कोड। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सर हमने ये कोड याद करने होंगे? नहीं बेटा, याद नहीं करना, आपको समझ नहीं आई। एग्जामिनर कहता है कि क्रिएट अ कलर कोड इन विच RGB, आपका रेड इज 10% एंड ग्रीन ब्लू आर ऑफ। रेड रेड 10% ऑन हो और ग्रीन ब्लू ऑफ हो, तो इसका कलर कोड क्या बना हो गया? सर रेड के भी 285 कॉम्बिनेशन होते हैं? एग्जैक्टली exactly, आप करोगे ठीक है। कि 255 का 10% निकालो, क्या आया? 25.5। एग्री विद मी? पूरिया बेटा, यू एग्री विद मी? 10% यस ऑफ सर। 255, तो टू आपने करना है राउंड अप। सो 25.5 को इफ यू राउंड अप यू गेट 26। एग्री विद मी? यस और नो? यस। तो आपने सिंपल 26 यहाँ लिख देना है। वंस यू राइट 26, ये 1A इज द कलर कोड फॉर 10% ऑफ ग्रीन। समझ आई बात की? यस सर। ये बड़ा अच्छा, ये फोटोशॉप में बड़े अच्छा टूल है दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट द हेक्साडेसिमल ऑफ एनी कलर कोड। आई होप यू गेट सर द तो क्या कहते पॉइंट। हैं, हमारा जो निकलेगा तो लाइक हमने लिखना कैसे है जी हेक्साडेसिमल? ये आ गया ना, हम आप। ये ये देखो ये आ गया ना। हाँ यहाँ आ गया। इस पेपर में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये पुराने पेपर में दफा आया था, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यही जो है 001A00, ये आपने अपने ड्रीम में यहाँ लिख देना है। मैं ड्रीम में आया था ना, इधर तो ये। सर मतलब कि हमने फोटोशॉप खोल के लिखना है जी ये? एग्जैक्टली exactly। ठीक है। यहाँ फिर जब जो भी कलर डिफाइन करना होगा मैं कर दूंगा उसको। मतलब वो ये कह रहा है ना कि कलर डिफाइन करो ना, तो हम सी डिजाइन में आएंगे, हम्म। हम टेक्स्ट में आएंगे। वो कह रहा है टेक्स्ट का कलर क्या हो ये, तो यहाँ मैं वो लिख दूंगा कोड। ठीक है सर। आई समझ? जी सर। मगर अभी ये क्वेश्चन ये नहीं था। मैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ कि वो अभी तो वो कह रहा है एक सिंपल सिंपल सी बात, वो कह रहा है विद नो ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट। मतलब प्योर ग्रीन क्या होता है हमारे लिए? प्योर ग्रीन के लिए ऑब्वियसली हमें वी हैव टू यूज ओवर हियर इज व्हाट वी विल यूज इन प्योर ग्रीन is RGB. So R is 00, green is on, and then 00. Is this not pure green? It is. So here you go. You get the color pure green. Everyone, is this clear or not? Aisha, everyone. जी सर। यस सर। Ania, Zoha, everyone जो भी online है, is this clear? Yes, जी good. सर। Well done. ठीक है. Then what we have is, so and have a font this print if not available Verdana, if neither of them available default sans serif font। ठीक हो गया। सो हम क्या करेंगे, हम इधर आके चूज करेंगे सी डिजाइनर में, एंड we'll select the font family। we'll see is do we have that। one second मैं चेक कर लूं। we have it, sans serif। अच्छा कौन सा, सॉरी कहा था मैं भूल गया। ऐसे do Verdana। oh
मुझे लगता है टाइप ही करना सर ये पड़ेगा। लास्ट वाला है नहीं, लास्ट वाला। जी वी हैव इट, गुड गुड, बिल्कुल। सो वर्डाना आंसर, हमें बाकी ये नहीं चाहिए। ओके, सो दैट्स फाइन। अगर आप इवन इनफैक्ट ये भी रहने दो ठीक है, मगर टू बी स्पेसिफिक वी जस्ट नीड दिस। सॉरी। ठीक हो गया? यस और नो? You know what it means? If this is not available, Yes, this sir. should be available. If this is not available, then any sans serif should be available. That's what it means, right? Okay. अब वो कहते हैं स्टाइल H1 शुड बी दिस, स्टाइल H2 शुड बी दिस, स्टाइल H3 शुड बी दिस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अब हमने we need to define H1, H2 and H3 separately. Okay, so we'll define H1 separately. Oh, not in capital. So H1 should be separate. And what shall we have here? We should have over here 36, no problem. Just define it over here is the font size in points, I believe. Yes, in points, 36 points. So 36, ठीक है। और फिर क्या हमारे पास? अच्छा, फिर है लेफ्ट लाइन राइट लाइन। तो टाइम सेव कर लेते हैं, इसी कॉपी करो और इधर आके I'll just change it just to save time. Control V, enter, Control V. This is supposed to be H2. This is supposed to be H3. This is supposed to be 14 and 12. This is supposed to be 14. This is supposed to be 12. This is supposed to be left line, right line. So you're supposed to do this. Okay, text me out. Make sure this is left aligned. Make sure this is over here right aligned. So we have left aligned, we have right aligned. Yes or no? ठीक है? Once you're done with all this, you see इसके marks अगर वापस ज्यादा होते हैं, आप एक और बार फिर verify कर लेना कि have I done everything that is required. One by one check कर लो everything. Okay, so if you verified, कोई इशू नहीं आएगा, your web page will appear exactly the way. At times आप कहते हैं मेरा web page का आउटपुट सही नहीं आ रहा था क्योंकि हम यहाँ क्वीनों की गलती कर रहे होते हैं, इसलिए सही नहीं आ रहा। जी हुरिया बेटा, इज दिस क्लियर? यस सर। वैसे मैंने आपको द पेपर आई गिव यू इन द मॉक दैट हैड अ वेरी एक्सट्रीम CSS क्वेश्चन, डिड इट नॉट? इट वाज क्वाइट लेंथी वन। यस सर। दैट वाज गुड प्रैक्टिस बाय द वे। ये पेपर भी अच्छा था, दिस वाज आल्सो गुड। और इसका पहले पॉइंट्स हो गए आपसे? यस सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जी अच्छा, इसके अलावा एनी क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था, वेब पेज तो हो जाता है, ये मेरे से भी हो गया था, एक्सेल का क्या करना है? एक्सेल हाँ नहीं होता, क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, वो ठीक है, नो पूछ के प्रॉब्लम, आता ठीक है। मैं। जी अच्छा, वेब बहुत काफी क्लियर हो गया है। जी जी सर, ये बहुत क्लियर हो गया, मतलब कि अब ये आ गया है, आधे से ज्यादा आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करनी है बस इसकी पेपर्स तो की दो बस। तीन पेपर और करो। तो बेटा जी सर। एक्सेल में बात सुनो। एक्सेल में जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की है सर उसमें आप मुझे कोई पेपर इस तरह का बता सकते हैं जिसमें ज्यादा ये स्टाइल शीट वगैरह की प्रैक्टिस हो, ताकि मैं वो प्रैक्टिस कर लूँ। मैं बेटा बता दूँ तो मैं आपको जी सर, क्लास मुझे भी बता बता दूंगा देना। आपको। ठीक है, साथ बेटा बात सुनो। अम, आप मेक श्योर करो कि सबसे पहले ना, अच्छा बात सुनो, वी हैव टू सेव टाइम। मैं ये करता हूँ, मैं आपके साथ ना एक एक्सेल के दो बेसिक पेपर शेयर करता हूँ, नॉट बेसिक, नॉर्मल से, जिसमें वी हैव इज लुकअप, वी लुकअप सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें वी हैव सम इफ, ठीक है, एंड वी हैव इज आवर नेस्टेड इफ। अगर आप ये सर ये मैंने देख ली है, ये आपने मुझे भेजी थी, मैंने देख ली हुई है। आपने पेपर, नेस्टेड इफ, सम इफ, हाँ का पता है मुझे, वी अच्छा लुकअप का आपने नहीं आपने पता मुझे। आपने अच्छा, डिड यू सॉल्व एनी पेपर? सर पेपर पेपर मैंने खोल के देखा था सर, उसके अंदर वी लुकअप्स के क्वेश्चन थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे करने हैं। कौन सा पेपर फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, सर जैसे मैंने ये कोई भी बता खोला दो मुझे। था, सर आपने जो भेजा हुआ था वही खोला था, क्या कहते हैं, 2020 का। अच्छा ये बात सुनो, ये जो भी हुरियन पेपर में पेपर ओपन किया हुआ है ना, मैं इसको देख लेता हूँ इसमें कौन सा क्वेश्चन है। और सर मैंने आपको बताना था, मेरा पेपर 15 और 17 का है, सलमान का पहले है, वो मुझे अभी बोली जा रहा था मेरा 2 और 3 को है। तो फिर आराम से बैठ जाओ, डोंट वरी, एक्सेल। वेरी हाँ गुड, बच बच गए तुम तो यार, हाँ। बच गए। सर एक क्वेश्चन है।
जी बेटा हमारा बोलो। जो कहते हैं वो आएगा सीआई के अंदर, हमारा जो प्रैक्टिकल में वो आएगा, हमारा ड्रीम वीवर के अंदर कौन सी वर्जन आएगी? बेटा 21। ओके सर। 21 आएगा। तो बेटा और किस सेकंड को किसका है? सर सलमान का है सर। वो आया नहीं क्लास में भी। सर वो उसको मैं करा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ के भी उसने आना ठीक है, है, मैं उसको सारा ठीक है, ड्रीम व्यूवर कल मैंने ठीक है, कराया था, वापस कराऊंगा उसको ठीक है। आज। हुरिया आपका सेकंड को है ना बेटा? नहीं सर, मेरा 15th और 17th को है। तो हानि आपका आपका किसका है? इस क्लास में किसका सेकंड को है? जी सर मेरा। हाँ, आयशा का भी है। आयशा ना? नहीं सर, मेरा 15 और 17 को है। तो किसका, मीना का है? मीना बेटा नहीं आप, सर, क्या सर कहते हैं मेरा सर, हम में 3 को ही है। इस क्लास में किसी का भी नहीं है सेकंड को? सर मेरा और सर मीशा का सेकंड को। हम्म। मेरा और मीशा का सेकंड को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर आपकी तो बेटा माशाल्लाह तैयारी, हाउ इज इट गोइंग? ऑनेस्टली बताओ। सर अभी तक अच्छी है, बस पेपर्स प्रैक्टिस ही करना है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा एक काम करो कि अब आप लोगों जिनका सेकंड को है ना, आप मार्च के वेरिएंट भी कर लो, 21 22 के। कैन यू डू इट एंड गेट बैक टू मी एज सुन एज पॉसिबल, बाय टुमारो? सर कौन सी ईयर के? 21 22 मार्च वेरिएंट। जी ठीक सर। ठीक है, ये करके मेरे करो। ठीक है बेटा, डोंट वरी। सर मेरा एक सवाल है। बेटा पूछो। सर मेरा सवाल है, ये सारे एक बात कर रहे हैं कि जिनका सेकंड और थर्ड को पेपर है उनका पेपर थोड़ा आसान होगा एज कम्पेयर टू जिनका 15 और 17। नहीं बेटा, कुछ जरूरी नहीं है। आप ऐसे रैंडमली काम करो, ओपन अप द वेरिएंट्स, यू विल सी फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं होता। ओके, लेवल एक जैसा ही रहता है। हाँ, सिर्फ ये फायदा हो ओके जाता सर। है सेकंड वालों को, ये आइडिया हो जाता है कि यू गेट टू नो अबाउट द ट्रेंड, कि इस वक्त ट्रेंड क्या पे कुछ चेंज तो नहीं हुआ। वो जरा पता चल जाता है, बस ये फायदा होता है कि क्या चीजें आई हैं। ओके, थैंक यू। कोई आउट ऑफ सिलेबस तो चीज नहीं आ रही, जो इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो बेटा इंशाल्लाह हम कल की क्लास में मैं आपके साथ कोई एनी वन ऑफ यू कैन से कि सर ये एक्सेल का पेपर सॉल्व करते हैं, कल मैं एक्सेल करता हूँ। मैं एवरी क्लास में सर लेक्चर। ये वाला जो आपने क्लास ये रिकॉर्ड किया ना, ये प्लीज आप अभी भेज देना। वो काफी दफा बोलना पड़ता, आप प्लीज आज ही भेज देना, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन की थी तो आपने कुछ स्टेप्स किए थे जो मैंने नहीं देखे थे। बेटा मैं अभी 5 मिनट तक भेज, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है। ओके। और आप लोग और डाउनलोड कर सर लिया कोई करो। मुश्किल पेपर्स भी बता दें, वेबसाइट ऑथरिंग वगैरह क्या? मैं वो भी देख के बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग यू द वर्क। ओके बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह सेम हाफिज टाइम, सर। सेम टाइम टुमारो। ओके।